یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ کانا دجال ہے، یہ ملا عمر ہے، یہ طالبان کا سربراہ تھا اور دائیں آنکھ اس کی کانی ہے، تو یہ ہے کانا دجال. ٹھیک ہے جی. تو ابھی میں آپ کو اسکرین پر دکھاتا ہوں. اوہو یہ چھوٹا دجال نکلا ہے، یہ ہے بڑا دجال. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملا عمر ہے، طالبان کا سربراہ. یہ آپ ویکیپیڈیا پر جائیں، آپ کو اس کی یہ کانے دجال کی دائیں آنکھ سے کانا ایسا ہوتا ہے کانا. یہ دیکھو ایسا ہوتا ہے کانا، سمجھ آئی ہے؟ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اب آپ کو صاف نظر آئے گا یہاں کہ یہ ایسا ہوتا ہے کانا دجال. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ملا عمر دیوبندی طالبان کا سربراہ اور دائیں آنکھ سے کانا ہے. تو یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ مٹی ہوئی ہوگی. اس کو کہتے ہیں کانا. میں آپ کو مسیح موعود علیہ السلام کی تصویر بھی دکھا دیتا ہوں. اور ان کی دونوں آنکھیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری آنکھیں تھیں نا، اس طرح ان کی بھی پیاری پیاری دو خوبصورت آنکھیں ہیں. اور وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں. اور دونوں آنکھیں ان کی اللہ کے فضل سے بالکل صحیح سلامت تھی. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ دیکھ سکتے ہیں دونوں آنکھیں بالکل صحیح کام کرتی ہیں. لیکن کانے ایسے ہوتے ہیں، وہ جو کانا میں نے ابھی آپ کو دکھایا ہے نا ملا عمر، تو اس طرح کے ہوتے ہیں کانے. یہ دیکھیں ایک آنکھ ہے، یہ نظر آ رہی ہے، دوسری آنکھ غائب ہے. اس کو کہتے ہیں کانا. اور وہ دائیں آنکھ سے ہی کانا ہے. اور یہ ہے ابھی دجال. اس نے خود دوسرے اپنے ساتھیوں کو قتل کر کے تو اس پر قبضہ کیا تھا افغانستان کی حکومت پر. ٹھیک ہے جی. تو ابھی اس طرح کی گفتگو کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ پھر جو کھرا ہے وہ آپ کے گھر میں جا نکلے گا تو پھر آپ کو برا محسوس ہوگا. جی ابھی نیکسٹ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ یہ اوپر بیٹھے ہیں جسونت صاحب، یا کیا نام ہے آپ کا؟ ہیلو کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ یو ایس اے میں جٹ، اسامہ جٹ. ہاں جی آپ نے کرنی ہے کوئی بات اسامہ صاحب؟ ہیلو 1 2 3 چلیں آگے. نیکسٹ ہے جی. نیکسٹ کسی نے بات کرنی ہے؟ یہ علی بڑا. ہاں جی جی آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس بہت علم ہے، کالا علم بھی ہے، ہر طرح کا علم ہے. ہاں جی ہاں جی بھائی ایک کام کریں، مائک ہاں جی ہاں جی ٹھیک ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ اپنی اما دی خودی کیوں نہیں بند کر سکتا؟ تیرے نال دا کوئی ہو رہا ہے یہاں. اچھا چلیے وہ تو آپ نے اپنی والدہ پہ پہلے یہ تجربہ کر لینا، پھر لوگوں کو مشورے دیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کہ اے مومن ہونے کا دعویٰ کرو، دعویٰ کرنے والوں تم وہ کام دوسروں کو کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. تو اگر آپ نے خود کر لیا ہے تو کوئی اس کا ثبوت پیش کر دیں، پھر آ کے ہمیں مشورہ دے لیں. نیکسٹ کون آیا جی؟ علی بڑا صاحب کریں بھائی بات. اس کو مسلمان کہتا ہے. ہاں یہی اسلام کی سب سے بڑی نشانی مجھے یہی نہیں اتارنا نیچے، مجھے آپ روز نیچے اتار دیتے ہیں. میں کو کبھی گالی گلوچ کی ہے؟ چلیں جی آپ نے یاد کروا دیا، میں تو بھول گیا تھا. اچھا نیکسٹ علی بڑا صاحب آپ کریں بھائی کوئی بات. جی میر صاحب مجھے پہلے اچھا جنہوں نے 2-3 ریکویسٹیں ڈالی ہوئی ہیں نا، جس نے گالی نہیں دی اس کو اٹھا لیں. ہاں جی جی علی بڑا صاحب آپ نے کر لیا بات؟ جی میر صاحب میں یہ بات کر رہا ہوں جو یہ مسلمان کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی دینے سے منع کیا ہے، یہ کہاں کے لیے؟ نہیں یہ نہیں کہتے نا، غلط آپ نے سنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گالی دینا ثواب کا کام ہے. وہ تو کہتے ہیں اللہ بھی گالیاں کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی گالیاں دیتا ہے، بخاری میں بھی گالیاں ہیں، قرآن میں بھی گالیاں ہیں، صحابہ بھی گالیاں دیتے تھے. وہ کہتے ہیں اگر ہم دیتے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ ان کا. میر صاحب ان لوگوں سے یہ بات پوچھے کہ یہ کس حدیث میں اور کس قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ گالیاں دینا سنت ہے، ثواب ہے؟ سر جی میں بھی کافی دیر تو بیٹھا ہوں، میں سنوں گا بیٹھ کے آپ کو. میر صاحب ٹھیک ہے جی سر جی میں بھی کتنی دیر تک بیٹھا ہوں، میرے سوال کا جواب دے دو. میں 4-5 دفعہ جواب دیا ہے، تو آپ ابھی دوبارہ آپ کی باری آتی ہے، پھر آپ سے کرتے ہیں بات. جی علی صاحب آپ اوپر آئے ہیں، پہلے آپ کچھ پوچھنا چاہتے تھے پھر آپ چلے گئے تھے. کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. جی السلام علیکم میر صاحب، جزاک اللہ تسی موقع دیتا ہے. میں ایک سیکنڈ صرف اسلام سیکنڈ گزر گیا بھائی ابھی ٹائم. اسلام احمدیت بھائی سے سیکنڈ تو آپ نے مانگا، سیکنڈ تو گزر گیا. 1-2 منٹ بات کر 1-2 منٹ ہاں پھر ٹھیک. جی سوال کر لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بھائی جان ابھی میں آپ کی نا کافی دیر سے بات سن رہا تھا. ابھی ایک بندہ آپ کو بول رہا تھا کہ جب کوئی بندہ احمدی ہوتا ہے تو اس کو نا وہ بہت پیسے اور پاسپورٹ یہ وہ چیزیں ملتی ہیں. تو میں آپ سے میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ احمدی ہونے سے پہلے کیا تھے؟ دیوبندی تھا. دیوبندی. جب آپ احمدی ہوئے تو آپ وہ ایک لائیو ایگزامپل ہے، 400-450 بندہ آپ کو سن رہا ہے. تو کس کنٹری کا آپ کو پاسپورٹ ملا ہے اور کتنے پیسے ملے انڈیا ہیں؟ کا پاسپورٹ ان کو مل گیا تھا اس کے فوراً بعد، کیونکہ 18 سال انڈیا کا بھی نہیں ملا یار. میرا انڈیا کا بھی نہیں بنا ابھی تک. کتنے پیسے ملے تھے آپ کو؟ کتنے پیسے ملے تھے مجھے؟ علی بھائی دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو. جی جی جو حقیقت بات ہے، جب ہماری مخالفت شروع ہوئی تو اس وقت بھی مولویوں نے یہی شور و غوغا مچایا ہوا تھا. بڑے بڑے جلسے انہوں نے کیے، کئی کلومیٹر دور تک لوگ مطلب موجود تھے، اور وہ گھر تک ہمارے آواز آتی تھی بھائی یہ اتنے لاکھ روپے دیتے ہیں جب کوئی بندہ قادیانی ہو جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو جب ہمارے اوپر حملہ ہوا تو کافی مالی نقصان مطلب ہمارا ہوا. تو اگلے دن جب ہم بیٹھے تھے نا، تو جب ہم نے ہجرت کی، مطلب سہارنپور سے ہم قادیان کی طرف روانہ ہوئے، تو آپ یقین جانے میں میری ساری رات نے یہی سوچتے ہوئے کٹی. میں نے کہا یار وہ مولوی صاحب تقریروں میں کہتے تھے کہ یہ ایک بندے کو جب کوئی احمدی ہو جاتا ہے تو میرے خیال سے 1.50 کروڑ دیتے ہیں. تو یار ہم تو ماشاء اللہ سے کافی ہیں، اچھا سب کے بھی اگر ملا ہے تو کم سے کم 5 کروڑ بیٹھیں گے، تو اتنے کا تو نقصان بھی نہیں ہے یار، بھرپائی ہو جائے گی، ٹینشن والی کوئی بات نہیں. صحیح. اس کے بعد کہا یار 50 لاکھ دیں. جواب دے دو بھائی ہمارے پاس سینہ در سینہ علم ملا ہے، تو چپ ہو جا. یار جواب دے ہمیں بڑوں سے ملا ہے، ہمیں یہی. جواب دے تو سیدھا کہو نا نیچے اتار دو.
जी भजन प्लीज कैरी ऑन। हाँ, तो भी मैंने कहा भाई चलो 50 ना मिले तो 30 तो देंगे ही कम से कम, तब भी काफी हो जाएंगे। चलो 30 ना दें 20 तो देंगे ही, 20 ना दें 15 तो देंगे। ऐसे ही करते करते मैं हिसाब जोड़ता रहा भैया, 4-5 घंटे निकल गए मेरे। लास्ट पर मैं आकर रुका, मैंने कहा यार चल कुछ ना हो 40-50 लाख तो देंगे कम से कम। तो मैंने कहा आज इतने का नुकसान हुआ है, चलो मैंने कहा भरपाई हो जाएगी, कोई मसला नहीं है भाई। फिर उसके बाद हम कादियान पहुंचे, अगले दिन एक मौलवी साहब आए, जी जी उन्होंने एक बैत फॉर्म दिया, तो उर्दू जानते थे हम पढ़ना, तो उन्होंने कहा भाई इसे पढ़ लो, अगर आप एग्री करते हो तो इस पर सिग्नेचर कर दो, अलबत्ता अगर एग्री नहीं हो तो फिर कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आपके वालिद साहब की ख्वाहिश यही है, उनसे हमने पूछा, तो वो कहने लगे भाई मेरे बच्चों को ये बैत फॉर्म पढ़वा दो, अगर वो राजी हैं तो वो सिग्नेचर कर देंगे, अगर वो राजी नहीं है तो फिर जबरदस्ती मत करना। उन्होंने भाई वो एक एक बैत फॉर्म हमारे हाथ में दे दिया, एक एक कागज, उसे हमने पढ़ा, तो हमने कहा यार इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे इंसान ये कहे कि नहीं भाई हम नहीं करते बैत। जी जी वो सारी वही बात है कि भाई अल्लाह और उसके रसूल की बात का पाबंद होना है, शिर्क नहीं करना है। खैर भाई वो सिग्नेचर वगैरह हमने कर दिए, कुछ भी नहीं मिला भाई। वो एक पेपर दिया मुझे और जुल्म की इंतहा तब हुई जब वो सिग्नेचर करा के वो भी वापस ले ले, वो पेपर भी नहीं दिया। और लास्ट क्वेश्चन है मेरा, अभी अभी आप जो है एमडी होने के बाद आप क्या पे कर रहे हैं जमात को? आपको तो कुछ नहीं मिला, और अभी आप क्या पे कर रहे हैं ये बता दें, बस ये लोगों के लिए है। हाँ जी, जो हमारी माहाना इनकम होती है उस पर एक मियाद मुकर्रर हो जाती है कि जिसे हम चंदायाम बोलते हैं कि वो आपने देनी है, ठीक है ना। इसी तरह से वक्फ जदीद और तहरीक जदीद का चंदा होता है। इसी तरीके से जलसा सालाना वगैरह खुदामुल अहमदिया के जो वो होते हैं चंदाजात वगैरह, जिनसे हमारे दूसरे काम होते हैं, तो वो अल्लाह ताला के फजल से फिर वो हम अदा करते हैं अपनी ही इनकम के अंदर से। यार जवाब देना तो ठीक है, नहीं तो उतार दो नीचे, मैं नहीं भागूंगा। उतर जवाब जाओ, देना सही है। चाहूंगा। इस तरह की ना खुद जनानियां होती हैं जो कहती हैं मैं मैंने जवाब सूट ला के देना देना है, चाहूंगा, ले आके मैं दो नहीं तो मैंने तलाक अगर दे जवाब है तो ठीक है, नहीं तो दो। इस तरह की जनानियों को जल्दी तलाक इसलिए हो जाती है कि हर वक्त यही कहती रहती हैं सूट ला के देना है तो दो नहीं तो मैंने तलाक दे दो। हाँ, नहीं तो मैं आगे कर छोड़ जज़ाकल्लाह भाईजान, मैं यही बात पता ओके। करना था, ये जो ठीक है। हम लोग बैठे हुए हैं उनके लिए क्लैरिफिकेशन के लिए कि यहाँ पे जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब मुसलमान होते थे ना लोग, तो वो अपने घर का सारा सामान भी ला के दे देते थे, उनको कुछ पैसे नहीं मिलते थे। तो सेम इधर भी ऐसे ही है, ये खुदाई जमात है, इधर से आपको कोई पैसों की लालच नहीं मिलेगी, बल्कि उल्टा आपने चंदा देना है, उल्टा आपने जो है ना अपने माल में से निकालना है और खुदा की राह में खर्च करना है। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू, खुदा हाफिज़। यार माइंड रोस्टर भाई मेरी बात का जवाब दे दें आप। यार जवाब नहीं देना तो नीचे उतार दे, बाद में ये ना कहना ये भाग गया है, मैं भागूंगा नहीं। जवाब नहीं, चाहना। आप बेशक सारी रात आपने कहा था बैठे रहे, तो बैठे रहे आराम से, आपको जवाब दिया यार तो जवाब है। दे, मुझे जवाब दे, मैं नहीं आम चाहूंगा बंदे से वो क्या बात करें जिसके पास इल्म ही नहीं है? हम वलीउल्लाह हैं, आप आम लोग हैं। कहना। यार किसी बड़े को लाओ, आपके मेरा पास- जवाब दे, आप- मेरा जवाब दे, और मुझे एमडी करो। आपकी तवज्जो का। अच्छा अभी माइक म्यूट कर लें, वो दूसरे भाई आए हैं, से करते हैं बात। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी जी वालेकुम सलाम। किए हो गए गले शाह पास किए? من كرأ صوتي لما نتكلم الحين ما حد بيكرأ صوتي. ما أنت تقول يا أخي إني بنجابي إني ليس العربية؟ ما أنت تقول؟ يلا يلا ما حد كرأ خلاص. ما خلاص مش هذا. اسمع अच्छा बात सुनो, तुमने कहा था अभी पढ़ के सुनाओ, लाओ कौन सी अभी तुम्हारी भाई पढ़ देते हैं, ठीक है सही। इस बात अच्छा ये भी पढ़ के बता दो फिर। रोज खुद अशखत بود از دست خط خل رز بود اما تو به شاید کردی نزدیک من نداد. بولو بولو भाई مش قال ما صدر ديك نمي خال لماذا قطع صوتي؟ شو هاي هو بس نحاول لماذا قطع صوتي أول سؤالي من الا لما أكتب تنطى ورلا بچا ورلا بچوड़ ورلا أسكت هذا खदा विंदारा प्रेम कथा वटा उंदी अपनी अकीदत दुनिया भर की जबानें बोली जाती हैं प्यारे भाई, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर एक भी नहीं बोल पाओगे तुम। अपनी अकीदा पहले सुनने आओ कि आपका अकीदा क्या है। अच्छा अपना माइक म्यूट करें ना, जो दोस्त पहले बैठे हैं उनसे बात करते हैं, फिर आपसे भी करते हैं। अच्छा और कोई जो ऊपर आए हैं, मुदस्सर साहब, कश्मीरी साहब, ये एडवोकेट साहब से तो पहले हो गई है, ये अली बड़ाई साहब फिर ऊपर आ गए हैं। मेरे साहब मेरा एक सवाल सुनने हैं, मैं हाँ जी। कितने दिनों से ट्राई कर रहा हूँ। देखिए मैंने कभी भी 2.5 साल हो गया मुझे टिकटॉक पे, मैंने आज तक किसी एमडी पे अटैक नहीं किया, ना कभी। ये साहब मियाँ साहब मुझे जानते हैं, मेरे दोस्त हैं। हाँ, हाँ। आपने तो जब बात मुझे सिर्फ आपसे गिला ये है कि आप कितने दिनों से जिंदगी टिकटॉक खोल के यही गिला है मुझे। जी जनाब आप इधर ही देखिए, मेरी बात सुन लो। ये सब का आवाज आपसे अच्छी है तो यार कश्मीरी हैं, दो है तुम ही, मैं भी दो है, मीर भी बहुत देर से मिला है मुझे, जिंदगी से यही गिला है मुझे। हाँ जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। मेरे साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 साल तो जानना सुनना भी हां, मेरा सिर्फ गिला है, मैं नहीं कह रहा मेरा कोई सवाल है। गिला सिर्फ है भी मेरे साहब के ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਲਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਮਡੀ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। कोई बात नहीं,
परवाह। इस वास्ते कि तुसी आले मोहम्मद आले रसूल दे कराने दे कितने दिन हो गए अटैक कर रहे हो, मौला अली ते अटैक कर रहे हो, इमाम हसन नहीं देखिए, मैं जो भी बात करूंगा ना, आपके पास उसका कोई जवाब है तो दे दें, जज्बाती गुफ्तगू का कोई फायदा जवाब नहीं ये है कि आपके मुंह से मैंने कितनी दफा सुना है कि मौला अली ने नाजायज बंदों को मारा है। हाँ बिल्कुल नाजायज मारा है। आप बता दें क्या जवाब था हजरत उस्मान के कातलों को साथ लेकर दूसरे मुसलमानों को कत्ल करने का? सवाल का जवाब दें, जज्बाती गुफ्तगू करने का क्या फायदा है? नहीं जज्बाती नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मेरे पास अगर मैं हवाला पेश कर दूं, इसका ऑर्डर किसने दिया कत्ल करने का? हाँ, बीबी आयशा ने दिया। हाँ दे दें हवाला, बीबी आयशा ने ऑर्डर दिया सबूत कि दे ये ना, कत्ल कर लो। सबूत दे भाई। अगर मैं सबूत दे दूं तो फिर ये सब लोग बैठे हुए आपके तिबरी में दूंगा, मैं तिबरी का। हाँ मैं यही कह रहा हूँ ना, तिबरी से अगर आप बीबी आयशा बात ने सुन लेना। इसको कत्ल कर दो, ये काफर हो गया थे। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि तबरी से ही मैं सबूत दूंगा कि वो हजरत उस्मान ने कातलों को खत लिखकर बागियों को बुलाया था, और इस बात का आप भी इनकार नहीं कर सकते कि मोहम्मद बिन अबू बकर कातिल है, अमार बिन यासर कातिल है, मालिक अश्तर नकी कातिल है। ये तीनों कातिल हजरत उस्मान के। मैं बता रहा हूँ ना आपको, बात नहीं सुन रहे ना। मरवान इब्न हकम के बारे में ये हुक्म था ही नहीं, वो उसके बाप के बारे में था, हकम के बारे में था। पूरी फैमिली पे लानत की है रसूल अच्छा ने, नहीं की, पूरी नहीं फैमिली की, पे। नहीं की, झूठ बोल रहे हैं आप, लाइन ले दें हवाला, की हो तो फिर। नहीं की। इसको अपनी बेटी नहीं दी की। कि नहीं उस्मान था हजरत उस्मान ने? और तो भाई हजरत मीर मुआविया की बहन के साथ अबू सुफियान की। हाँ क्या बीबी फातिमा का वो बागे फिदक इसने तोहफे पे दिया है। ओ भाई बागे फिदक अगर बीबी फातिमा का था, बात सुने ना, देखें आप बात नहीं सुन रहे, आप शोर करने से फायदा नहीं होता। अगर बागे फिदक हजरत फातिमा का था तो हजरत अली 5 साल क्यों नहीं ले सके? वो जब वो बागियों के साथ मिलकर मुसलमानों को कत्ल करते रहे। मैं जवाब देता हूँ, मेरा जवाब सुने। क्या जवाब? इसलिए नहीं लिया कि बीबी ने दरबार में कहा था कि इसका फैसला रोजे मैचर होगा। ये झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, झूठ बोल रहे हैं। नहीं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। मुझे ये बताएं, बात सुने, हजरत अली मर्द थे ना, तो कभी औरतें भी अदालतों में जाती हैं? शर्मो यानी बंदे के अंदर होती है कि मर्द बंद। बात सुने ना, जब भी ये बात आई है हजरत अली ने, बात सुने ना, मैं आपको बताता हूँ ना, बात नहीं सुन रहे ना। जब भी वक्त आया है मुश्किल, हजरत अली ने हजरत फातिमा को आगे कर दिया है। 6 महीने घर में बैठे रहे हैं उन्होंने, हजरत अबू बकर की बात नहीं की जाके। जब हजरत उमर ने आगे दरवाजा खटखटाया ना, हजरत अली को पता चल गया हजरत उमर आ गए हैं, ये अंदर बैठे रहे हैं और हजरत फातिमा को बाहर भेज दिया है। मर्द ऐसे होते हैं। फिर जब फिर बात सुने, फिर बात ऐस मुल्क को गल ना कर, मेरे को बदतमीजी हुई होगी। कौन भागा है? ये बदर में कौन अच्छा भागते बात थे? सुने, मौला अली हाँ, खड़े रहते थे वहाँ पे। मैं बताता हूँ ना कौन भागा है। ये तो दूसरी खुद बात कह रहे हैं, बता रहा हूँ ना मैं, बात तो सुने, ये तो फिर है ना ये तो खुद कह रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हजरत अली बाहर क्यों नहीं आए? हजरत बात नहीं सुन रहे आप, देखें ना, बात सुन ही नहीं सकते, सच सुनना बड़ा मुश्किल है। आपका बुग़्ज़ है, आप बुग़्ज़ आपके अंदर बुग़्ज़ है, आपके अंदर बुग़्ज़ पाया जाता है सारे सहाबा का। आप अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी के पैरोकार हैं। आप अब्दुल्लाह इब्न सबा यहूदी ने जो झूठी कहानी गढ़ी है वो आपने याद की हुई है। भाई हजरत उमर जब आए हैं, जब हजरत उमर आए हैं, मैं ये कह रहा हूँ ना, मेरी बात सुनो, जब हजरत उमर आए हैं, जब हजरत उमर आए हैं, हजरत उमर जब आए हैं हजरत अली के घर, तो ये अगर मर्द थे तो बाहर दरवाजे पर क्यों नहीं आए? हजरत फातिमा को क्यों भेज दिया है बाहर? फिर जब बागे फिदक लेना था तो मर्द जो है वो जाता है अदालतों में। ये कैसा मर्द है, खुद घर बैठा हुआ है, औरत को जाके अदालत में भेजा हुआ है, जाओ जाके अदालत में वहां बहस करो उनके साथ। फिर अब भागने की जब बात है, जंगे सफीन में जब हजरत अमर बिन आस और हजरत अमीर मुआविया की फौज ने हमला किया है तो सारी फौज हजरत अली की भाग गई है, हजरत अली भी साथ भाग रहे थे अपनी फौज के। ये वो इसी तबरी में लिखा हुआ है जिसमें से हजरत आयशा की आप कह रहे हैं, मैं आपको देता हूं, मैं अभी खोलकर आपको दिखा देता हूं। मैं तो दिन रात यहां पढ़ के लोगों के सामने सुनाता हूं, मैं कौन सा अपने पास से बात कर रहा हूं। हजरत अली वहां भागे हैं। दूसरा मुझे ये बताएं, जब जो हजरत तलहा थे ना जंगे उहद के ऊपर, जब हजरत खालिद इब्न वलीद ने पीछे से हमला किया है ना, हजरत अली गायब हो गए थे, हजरत अली वहां जंग में मौजूद नहीं थे। हजरत तलहा जो थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी हिफाजत के लिए मौजूद थे। वो जब तीर बरसाते थे ना तो हजरत तलहा ने अपने हाथ पर वो तीर खाए हैं। सारी जिंदगी के लिए हजरत तलहा का हाथ मजूर हो गया था। जब मालिक अश्तर ने हजरत तलहा की गर्दन पर तलवार रख के हजरत अली की बैत के लिए कहा है ना, हजरत तलहा ने सबसे पहले हजरत अली की बैत की है मालिक अश्तर की तलवार के डर से, यानी कि खौफ से उसने गर्दन पर तलवार रख के कहा है कि बैत करो। वो हजरत अली के साथी ने जो बसात बैठा हुआ था कहा है चूंकि ये बैत एक हाथ वाले ने की है इसलिए ये खिलाफत कभी कामयाब नहीं होगी। अब वो बंदा जिसका हाथ ही मजूर हो गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए जंगे उहद में, उसकी शान ज्यादा है कि हजरत अली की शान ज्यादा है जिसको एक सुई भी नहीं चुभी। आप दुनिया की किसी तरीके से साबित नहीं कर सकते कि हजरत अली को एक पत्थर भी लगा हो, एक सुई भी चुभी हो उहद पर। ये भी भाग चुके थे अल्लाह के बंदो। वो खालिद इब्न वलीद था, जब खालिद इब्न वलीद आया है तो अली नजर ही नहीं आया मैदान में किधर है। रसूलुल्लाह की हिफाजत हजरत तलहा करते रहे हैं जिनका मजूर हाथ इस बात का सबूत था कि उन्होंने अपने हाथ पर वो तीर खाए हैं जो रसूलुल्लाह की तरफ आए थे। ठीक है, और हजरत अली जंगे सफीन पर इसी तबरी में लिखा हुआ है कि जब जोर का हल्ला पड़ा है ना वहां शाम का, तो इनका जो आगे वाला हिस्सा था ना जंग का वो भागकर चला गया है और हजरत अली दरमियान में थे, ये भी भागकर पिछले हिस्से के साथ मिल गए हैं। गुलाम अहमद साहब ने शेर व शायरी की है इनकी शान में, मौला अली की आले बैत। वो अहले सुन्नत वाले हैं, वो शिया वाले नहीं है, वो शिया वाले नहीं है, वो अली, वो वाला अली नहीं है। हजरत उस्मान के कातलों का मुहाफिज अली नहीं है, वो उसकी शान में कुछ नहीं कहा उन्होंने, उस मुनाफिक अली के बारे में कुछ नहीं कहा। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है, दोनों झूठ है, बिल्कुल झूठ है, दोनों झूठ है, दोनों बातें झूठ है, दोनों बातें झूठ है, दोनों बातें झूठ है, दोनों बातें झूठ है। हजरत उमर नमाज पढ़ रहे थे, दोनों बातें झूठ है, दोनों बातें झूठ है। हजरत उमर नमाज पढ़ रहे थे, उनका मुंह किबले की तरफ था, उसके पीछे खड़ा हुआ था। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, 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 बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। कोई सजदे सुजदे में नहीं थे, वो झूठ बोल रहे थे। हाँ तो तिबरी तो कह रही है, तिबरी तो कह रही है हजरत अली धोखेबाज थे, तिबरी तो कह रही है हजरत अली लालची थे, वो हुकूमत की लालच में लोगों को खत लिखकर
बुलाया कि हजरत उस्मान को शहीद कर दो, 25 साल हो गए मैं तरस रहा हूं, मुझे किसी तरीके से हुक्मरान बना दो, हजरत उस्मान के कातलों के हाथ पर बैत करके ये खलीफा बने हैं, ये तिबरी कह रही है, ये भी मान लो तो वो भी मान लो। ओ भाई हमारे लिए तो हजरत ही नहीं, हम क्यों हाँ, माने? तो फिर मुझे क्यों पेश कर रहे हो? तुम्हारे लिए हजरत नहीं है। आप तो मानते हैं ना? किसको? आप इसलिए पेश कर रहा हूं। इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आपके जो वाक़या करबला है ना वो तिबरी, हमारे इमाम तो नहीं है। क्यों आपके इमाम नहीं है? हमारे ये इमाम नहीं है, ये बुखारी बुखारी के तो आपके हाँ, इमाम तो है। मैं बुखारी पेश ही नहीं कर रहा, मैं आपको शिया की हमारे किताबों तो से दिखा है, देता, सारे मैं शिया की किताब से, मैं शिया की किताब से आपको हमारा पेश तो आले कर, रसूल है सारे। शिया की किताब। आले रसूल कौन है? रसूल के तो औलाद हमारा ही कोई तो पहला भी नहीं मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है। थी, रसूल की औलाद ही नहीं थी, आखिरी मोहम्मद तो एक ख्याली पुलाव है, 11वां इमाम जो है बे औलाद मर गया था, ये आखिरी मोहम्मद तो बाद में ख्याली पुलाव पकाया गया है, 11वें इमाम की तो औलाद ही कोई नहीं थी। ये शिया किताबों में लिखा हुआ है, शिया किताबों में लिखा हुआ है हजरत अली ने चोरी की, हजरत उमर के पास 2 गवाह थे कि इन्होंने चोरी की है, उन्होंने इनकी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता मांगा, इन्होंने आगे से चूं नहीं की और हजरत अब्बास को बेटी दे दी है और जाकर हजरत उमर से उन्होंने शादी कर दी है। ये आपकी रिवायतों में लिखा हुआ है। रिवायतें मैं जब पढ़ूंगा तो आप ये आप जो है ना आप मुंह छुपाते फिरेंगे। तो आप मुंह नहीं छुपा रहे कि आपका पहला इमाम चोरियां कर रहा है, हजरत उमर के पास गवाह थे उस चीज के कि इन्होंने चोरी की थी। भाई ये तो फिर हजरत उमर गद्दू का दलाल था, ये लिखा हुआ है। हाँ, तो हजरत अली की भी यही करते थे ना। हाँ, हाँ, क्या इसका पेशा था कि ये गद्दू की दलाली करता तो इसमें क्या मसला है? इसमें क्या मसला है? हजरत अली तो कुछ भी नहीं करते थे, ये तो काम करते नहीं थे, बैठे रहते थे। हाँ, कुछ भी नहीं, क्या क्या इसमें कुछ भी नहीं होता। तो ये होता, ये नहीं होता। हाँ, तो फिर क्या है? फिर क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो भी काम करते थे, वो कुरैश की बकरियां चराया करते थे, इसमें क्या मसला है? शराबी पी के तो लोग नमाज़ें हजरत अली शराब पीते थे, हजरत अली शराब पीकर नमाज़ पढ़ाया करते थे, हजरत अली शराबें पीकर, हजरत अली खुद शराब पीकर नमाज़ पढ़ाते रहे। बकवास में करी जाओ। इसने यार भाई जी बता दें, जवाब दे दें। अच्छा, जवाब देते हैं, रहमानी साहब देते हैं, अभी माइक में उठ जी प्लीज दीजिएगा जवाब। माइक में उठ रखे देते हैं जवाब। जी जरूर जरूर। अच्छा, सही रिवायात में लिखा हुआ है कि हजरत अली शराब पीकर नमाज पढ़ाया करते थे। उस वक्त कुरान की आयत नाज़िल हुई कि जब शराब तुम पी लो तो फिर नमाज के करीब ना जाया करो। ठीक है जी, तो ठीक हो गया ना, जो हासिल होगी आज तो नहीं, पहले आराम तो नहीं था ना, हो गया बस, जब आराम हो गया तो बस खत्म कर दी। तो इसके पहले शराब पिया करते थे ना हजरत अली, हाँ तो ये तो काफर थे, दूसरे तीनों तो काफर थे, पहले तो ये भी काफिर ही थे। हजरत अबू तालिब तो काफिर और मुशरिक मर गए थे। हजरत अली के वालिद, हजरत अली का वालिद, आप हजरत अली ने खुद खतने चेक किए थे जाके उनके? बिल्कुल, ये 50 साल हजरत अली का खतना हो गया था, इसका कोई सबूत है आपके पास कि हजरत अली का खतना हुआ था? मैं कह रहा हूँ कि हजरत अली तो, ओ भाई रसूलुल्लाह का क्या कसूर है? अगर हजरत अली का खतना नहीं हुआ तो इसमें भी रसूलुल्लाह का कसूर है। भाई फिर इसरा इनके नहीं हुआ ना रसूल। हाँ, तो आप खतनों से बाहर निकले ना, आप हजरत अली की और हजरत अबू बकर की शलवार से बाहर निकले ना। मैं ये कह रहा हूँ कि हजरत अबू बकर का हजरत अली का वालिद, हाँ तो ये भी मुशरिक ही थे, इनका बाप तो मुशरिक ही मरा है, अबू तालिब मुशरिक ही मरा है। देखना, बात नहीं सुन रहे, बात नहीं सुन रहे, यही मसला है आपका। अबू तालिब मैं ये कह रहा हूँ मुशरिक, अबू तालिब मुशरिक था, अबू तालिब मुशरिक था, अबू तालिब मुशरिक था, अबू तालिब मुशरिक ही मरा है, मुशरिक ही मरा है। अबू तालिब अली का वालिद मुशरिक मर गया है, उसने कलमा पढ़ा ही नहीं। और मैं आपको साबित करता हूँ अबू तालिब यार एक मिनट अपना शौलत साहब, हाँ तो फिर क्या है पढ़ाया? तो आपके नबी का तो अली शराब पी सकता नहीं, क्यों हराम हो गया? कहाँ लिखा है कि मुशरिक कलमा? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? अबू तालिब के वालिदैन का निकाह किसने पढ़ाया था? किसके? अबू तालिब के वालिदैन का निकाह किसने पढ़ाया? उस वक्त क्या उनको तौहीद का मिल गया था अपना? तो ताते बातें है ना आपके पास। तो जब रसूलुल्लाह की शादी हुई थी तब उस नबी 10 रुपए पर, 20 रुपए पर, वो कपड़ों के जोड़े पर, किसी भी चीज पर हाजिर कर लेते हैं और उसके साथ जिनसी ताल्लुक कायम करते हैं। अब मुझे बताएं, जना और इस मुते में फर्क क्या है? मुझे ये बताएं। अच्छा मैं बताता हूँ, मुद्दा जो होता है आपको पता नहीं है ना, क्योंकि आप है नहीं शिया। मैं बताता हूँ, ये बाकायदा निकाह होता है। अच्छा मुझे बताया, हुजूर ने तो 12 लोडियां रखती थी, लोडियां को इसका निकाह तो नहीं किया जाता, उनको तो वैसे ही आप उनके साथ सेक्स करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, बात मुते की हो रही है, लौंडियों की तो हो नहीं रही। अल्लाह ताला कह रहा है कि करो। ओहो अल्लाह के बंदे, लौंडियों की बात नहीं हो रही। लौंडियों बात सुने ना, देखिए सवाल मुता का किया है, आप चले गए हैं लौंडियों पर। मुझे ये बताएं, अच्छा कश्मीरी साहब बात नहीं सुनते, बात नहीं सुनते, लेकिन मुद्दे में निकाह होता है, गलत कैसे है? अच्छा बात सुने, अच्छा बात तो सुने ना, बात ही नहीं सुनते आप। भाई ये चीज को अल्लाह हलाल कह रहा है, कुरान करीम में लिखा हुआ है कि लौंडियों के साथ हम बिस्तरी हलाल है, आप उसे कह रहे हैं वो गलत है। उसमें भी मुता कह रहा है, अल्लाह मुता करे, वो भी हलाल है। नहीं बिल्कुल, ये जो एक दिन के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए औरत से हम जिनसी ताल्लुकात कायम करना कुरान से कहीं भी साबित नहीं है। सूरत निसा साफ कह रही है मुते का नहीं, वो ये शियों वाले मुते का नहीं, वो कह रहे ना। नहीं देखिए बात नहीं सुन रहे आप, बात सुने ना, बात सुने। उस वक्त मैं कह रहा हूं, उस वक्त मना ही नहीं था, उस वक्त मना ही नहीं था, उस वक्त मना ही नहीं था। जब मना हो गया उसके बाद जना हो गया है। मेरी बात सुने, मुझे ये बताएं कश्मीरी साहब, आपकी फैमिली में आज तक कितनी औरतों ने मुता के जरिए लोगों के साथ हम बिस्तरियां की हैं? मुता किया है कभी आपकी फैमिली में किसी ने? आपकी वालदा ने कभी मुता किया है? मुझे पता है कुरान के किसी हुक्म को कोई नहीं खत्म कर। नहीं मैं पूछ नहीं रहा, मैंने पूछा है आपकी फैमिली में कभी आप किसी लड़की के मुता के लिए, अपनी फैमिली में अपनी बहन बेटी के लिए कभी आप मुता के लिए देखने गए हैं? लड़का के भी हम लड़का देखने जा रहे हैं, आधे घंटे के लिए मेरी बेटी ने मुता करना है तो मैं जरा लड़का देख के आता हूँ, कभी किया है आपने? ऐसा नहीं होता है। तो फिर निकाह क्या है? ये तो फिर छुप के जो किया गया वही तो सुना होता है। मैं कोई शिया भी नहीं हूँ, आप जो भी हैं, आप जो भी हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको आज तक किसी शिया ने दावत पे बुलाया है कि मेरी बच्ची का आधे घंटे के लिए आज मुता हुआ है और आए हम आपकी दावत करते हैं मुता पर?
ये 4 बंदों पर होता है, लौंडियां आज तक बंद नहीं भाई हुई लौंडी का कुरान में। सवाल ही नहीं हो रहा, लौंडी का मकसद ही नहीं है, लौंडी का सवाल ही नहीं है, सवाल मुद्दा क्या है? कुरान में ओ भाई मैं कह रहा हूँ लौंडी का सवाल ही नहीं, लौंडी का सवाल नहीं है, लौंडी मेरे- गुलामी बंद हुई है ना लौंडी हाँ तो मैं सवाल ही नहीं कर रहा लौंडी के बारे में, मैं तो मुद्दा के बारे में, मैं तो मुद्दा के बारे में सवाल कर रहा हूँ, मैं वो सवाल ही नहीं मैं कर तो फिर मैं कह रहा हूँ कि निकाह बकायदा कौन सा निकाह है, कौन सा, मैं कह रहा हूँ दो जो हीरा मंडी है ना पाकिस्तान के अंदर जना के अड्डे, बिल्कुल यही मुता के नाम पर वहां लाइसेंस मिलता है, सारी दुनिया को पता है। शिया फिर आप कह सकते हैं रसूलुल्लाह ने इसका जन्नत में बात सुने ना, लौंडियां बात तो सुन लेना, रखी थी ना वो। सफिया के साथ उन्होंने गलत किया, मारिया के साथ गलत किया क्योंकि वो अच्छा लौंडियां थी। मैं बताता हूँ ना आपको, तो कोई निकाह नहीं मुझे हुआ, ये वो तो बताया ना, बात मैं नहीं बताता है, ये हजरत इन्होंने अली लिखा हुआ है, हजरत अली हराम काम करते हैं ना, शराबें पीते रहे मैं हैं। कहता हूँ ये नासबी हैं जो मर्जी आपने लिखे, कहा इन्होंने आपने कहा है, आप कौन, अच्छा ये नासबी हैं, आप कौन है, ये नासबी ये नासबी हैं, आप कौन है, आप कौन है भाई, उन्होंने हक छुपाया, आप कौन है भाई? छुपाया। अहले बैत ये है ही नहीं, अहले बैत तो हजरत आयशा है नहीं, अहले बैत है नहीं, ये जाली अहले बैत, जाली अहले बैत है, अहले बैत जाली अहले बैत है ना, ये जाली अहले बैत, जाली अहले बैत है, ये जाली अहले बैत है, ये जाली है, ये अहले बैत है नहीं, अहले बैत हजरत आयशा है। अबू तालिब मुशरिक था, अबू तालिब मुशरिक था, अबू तालिब मुशरिक था, बुखारी में लिखा हुआ है कि वो मुशरिक मर गया। ये तीनों खलीफा जन्मी हैं, ये बिल्कुल दोज़ख में गए हैं। आप अपने पास से जो मर्जी करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुरान की आयत, हजरत अली से बड़ा बुज़दिल कौन था जो 25 साल लालच में बैठा रहा कि मैं खलीफा बनूं? हजरत अली साहब से बड़े बुज़दिल थे। कौन सा घराना, ज़ूर का कौन सा घराना है, कौन सा ज़ूर का घराना, कोई हजरत अली भागे हैं जंगों से। हजरत अली लालची थे, 25 साल लालच में बैठे रहे। हजरत अली लालची थे, दुनियादार बंदे थे, चोर थे। हजरत अली चोरियां किया करते थे, चोर थे, लालची थे। हजरत अली लालची थे, चोर थे, मुनाफिक थे, झूठ बोला करते थे, बुत परस्त थे। हजरत अली से बड़ा बुत परस्त कौन था? तलाक हो गई थी, ये भी साबित है। हाँ, मैं आपको ठीक। साबित करूंगा, आपकी किताब इसको तलाक दे दी थी रसूलुल्लाह ने। हाँ जी हाँ जी, सही। अच्छा बहरहाल ये है शिया, ये आपके अकीदे इन्होंने सुन लिए हैं और कोई भी बात दलील से ये कभी नहीं करेंगे, जो भी बात करेंगे झूठ से झूठ बोलते जाएंगे और बस झूठ ही इनके पास है। कोई सबूत मांगो, कोई कहां से सबूत देंगे जी?